ब्रेकियल आर्टरी की अगर हम स्टार्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से हमें ना शुरू से करना चाहिए। सब क्लेवियन आर्टरी की हमने बात की थी कि इट डिपेंड्स के राइट साइड की या लेफ्ट साइड की है। अगर वो लेफ्ट साइड की है तो वो डायरेक्टली आपके पास अयोटिक आर्च से ओरिजिन कर रही होगी, राइट। और अगर राइट साइड की है तो वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से वहाँ पे जाकर टिल जैसे ही वो लैटरल बॉर्डर ऑफ योर फर्स्ट रिब को क्रॉस करेगी, दिस सेम आर्टरी विल बिकम एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी आपके पास जैसे ही टीडीज मेजर है, यू कैन इजीली अप्रिशिएट दिस योर टीडीज मेजर, इसके लोअर बॉर्डर को जैसे ही क्रॉस करेगी, दिस सेम एक्सिलरी आर्टरी विल बिकम, इसको आप नॉमेनक्लेचर में नाम दे दोगे योर ब्रेकियल आर्टरी। And this brachial artery, it continues, right, it continues and like medial to the your bicep brachii muscles, like this is your biceps brachii, तो bicep brachii के medially it continues and it's very important क्योंकि आपके पास it's throughout superficial, आपके पास skin होती है superficial fascia and your deep fascia, right, there is no superficial muscle that is covering this artery, take out throughout its course. That's very important क्योंकि it's दो clinically it's clinically आपके पास it can be easily injured, right, plus it is beneficial as well क्योंकि आप easily इसको palpable कर सकते हो, right. So this artery, it continues downward and laterally. Here you can easily appreciate this artery is going downward and towards the lateral side, right, downward and laterally. So its course is very simple, downward and laterally. And what about its कहाँ से लेकर कहाँ तक हम करेंगे, तो अगर लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर को जैसे ही क्रॉस करेगी टिल योर रेडियस का नेक जो है, जैसे योर रेडियस बोन, रेडियस के नेक के जैसे ही ये ऑपोजिट होगी, इट बाइफर्केट्स इनटू ulnar and radial artery, right. So this is the whole course of your brachial artery. Now let's talk about brachial. Brachial, it's from a Latin word, right, it's from a Latin word brachium. Brachium का मतलब होता है बस arm, so it's literally the arm, an artery of your arm. Now let's talk about its relations. आपके पास इस पार्ट को ना हम ना तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर पार्ट, लोअर एंड योर मिडल एंड योर लोअर, ठीक है। तीनों पार्ट्स में हम रिलेशंस देखेंगे। सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन देख लेते हैं। एंटीरियर रिलेशंस में आपके पास, लेट मी जस्ट क्लीन इट फॉर यू, या एंटीरियर रिलेशंस, सामने रिलेशन आपके पास सबसे पहले पार्ट में आपके पास क्या है, आपके पास स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया एंड योर डीप फेशिया। नाउ one thing is very important, this is from the medial cord of brachial plexus, आपके पास दो cutaneous branches भी निकल रही थी। You have medial cutaneous nerve, a medial cutaneous branch of your arm and medial cutaneous nerve of your forearm, right. जो medial cutaneous nerve of your forearm है ना, that in the upper part it lies anterior to it. Here you can easily appreciate this small nerve that is accompanying in the upper part, it's anterior to this artery, right, alongside your, this is your ulnar nerve. Here you can easily appreciate this is your ulnar nerve that is going on, right. So this, the nerve that is lateral to this is your medial cutaneous nerve of your forearm, because here you can easily see it is entering the cutaneous surface of your forearm. So in the upper part, the anterior structure is one very special structure, that is the medial cutaneous nerve of your forearm. In the middle part, आपको हमने बताया था मीडियन नर्व में हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकियल, इफ दिस इज योर ब्रेकियल आर्टरी, तो मीडियन नर्व आपके पास जैसे ही स्टार्ट होती है तो वो शुरू में लैटरल, ये मीडियल सरफेस शुरू में वो लैटरल पोजीशन भी होती है, मिडिल पे आके वो इट बिकम्स सुपीरियर टू दिस ब्रेकियल आर्टरी एंड देन बिकम इट कंटिन्यूज एज medially, right. Here you can easily appreciate in this cadaver session. So this is your brachial artery, right, and this is your median nerve. Here you can easily appreciate the median nerve in the upper part, it's lateral, then in the middle part it becoming anterior to it, then it continuing as medially, right, median nerve. तो आपके पास मिडिल पार्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दो you cannot appreciate it right here,
राइट, आपके पास थोड़ा सा नीचे आके ये आपके पास हो रहा है, राइट, नीचे आके ये आपके पास मीडियन नर्व जो है आपके पास इट इज बिकमिंग एंटीरियर टू इट, बट आपके पास here you can easily appreciate this median nerve is firstly it is on the lateral side, then it is slowly becoming anterior to it, and then it is continuing as your towards your medial side. तो आपके पास मिडिल पार्ट ऑफ योर जो आर्म में हमने डिवाइड किया था उसमें एंटीरियर रिलेशन जो मेन होगा वो होगा आपके पास मीडियन नर्व, द क्रॉसिंग ऑफ योर मीडियन नर्व. एंड इन योर लोअर पार्ट this is your bicep brachia muscle, right? This is your bicep brachia. This is your bicep brachia. Now this bicep brachia, this is the tendons of bicep brachia. अब bicep brachia के tendons को strongly adherent करने के लिए to provide a very strong like insertion, आपके पास bicep brachia के आपके पास कुछ extensions होती हैं. These extensions are bicipital aponeurosis. Bicipital aponeurosis. Here you can easily appreciate this whitish area. This is bicipital aponeurosis that is continuous with your dermis, right? Not dermis, the deep fascia of your forearm, right? और ये strengthen provide करते हैं for your bicep brachia. Now इसके this is anterior to this brachial artery, right? तो lower part में आपके पास main structure जो है that is anterior is your bicipital aponeurosis. Now let's talk about its posterior structures. Posterior. Now posterior structure को करने से पहले हम जो है यहाँ पर चलते हैं. We are going and we are looking at a cross section जो कि आपके पास लिया गया है अपर आर्म के लोअर ऑलमोस्ट पार्ट में. So this is your humerus, right? Humerus. अब मैं लोअर पार्ट क्यों कर रहा हूँ? Number one, because median nerve is on the medial side of your arm here, because radial artery, the radial nerve is right over here, and in this transition there is no coracobrachialis. क्योंकि अगर अपर पार्ट से सेशन लिया जाता है कोई coracobrachialis, this is your coracobrachialis. Why I'm saying this? Because coracobrachialis is being pierced by this lateral branch from the lateral cord of brachial plexus, that is musculocutaneous nerve. This is your coracobrachialis. Now क्योंकि अगर अपर पार्ट से लिया जाता था तो coracobrachialis मौजूद होना था. अब coracobrachialis opposite to deltoid muscle towards your medial side of your humerus वहाँ पे इंसर्ट होता है. तो लोअर पार्ट में coracobrachialis नहीं है, तो ये सेशन में भी आपको coracobrachialis नहीं नजर आ रहा, राइट? Now posterior relation, this is your bicep brachia and this is your brachialis. तो सबसे पहला posterior relation क्या होगा आपके पास? Brachialis. The second is your this is your medial head of your triceps, and this is your long head of your triceps. So आपके पास posterior relation में आपके पास long head and your medial head of your bicep brachia are also very important. Here you can easily appreciate, let me just erase it for you. Here you can easily appreciate this is your long head of your tricep brachia, this is posterior, and this is your almost medial head. तो आपके पास ये दोनों posteriorly हैं to this brachial artery. नाउ उसके बाद आपके पास दी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आप डिस्कस कर लेते हैं मीडियल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं. मीडियली आपके पास दिस इज योर मीडियल, दिस इज योर लैटरल, राइट? सो मीडियली आपके पास अपर पार्ट में देखो, अपर पार्ट में नंबर वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर अल्नर नर्व दैट इज गोइंग ऑन, अल्नर नर्व, राइट? और लोअर पार्ट में आपके पास मीडियली जो मेन स्ट्रक्चर हो जाता है वो कौन हो जाता है? मीडियन नर्व, राइट? सो दिस इज योर मीडियन नर्व दैट इज कमिंग. सो दिस मीडियन नर्व इज योर मेन मीडियल स्ट्रक्चर. लैटरल अब रिलेशन डिस्कस कर लें. लैटरल रिलेशन में आपके पास देयर वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ योर, हम आगे डिस्कस भी करेंगे. आपके पास जो इसके लैटरल रिलेशन है दैट इज़ योर अपर पार्ट में डिस्कस करें, दिस इज योर कोरैकोब्रेचियालिस, तो इसके coracobrachialis तो होगा ही होगा, and your bicep tendons. These are all your lateral relations. So आपके पास lateral relation में एक और क्या होगा? lateral relation में आपके पास median nerve भी आ जाएगी अपर पार्ट में, क्योंकि median nerve वहाँ पर सबसे पहले lateral होती है, then it crosses your brachial artery, right? So ये आपके पास अपर पार्ट में. अब थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं. लेट मी जस्ट हम इसके बाद क्यूबिटल फोसा मेरे सेक्शन में डिस्कस करने से पहले आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इफ़ यू हैवंट सीन दिस इन योर, हमने वैसे इसको डिस्कस किया हुआ है मीडियन नर्व में भी.
राइट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कोरैकोर ब्रेकियालिस. अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊँ, कोरैकोर ब्रेकियालिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट मसल, क्योंकि आपके पास कहा जाता है कि कोरैकोर ब्रेकियालिस वॉज अ ट्राइसिपिटल मसल, 3 हेड वाला मसल था. बट बाद में एवोल्यूशन, विद द पैसेज ऑफ एवोल्यूशन, दिस मसल, दो आपके पास तो मीडियल हेड था वो डिसअपेयर हो गया, एंड द लॉन्ग एंड द मीडियल एंड लैटरल हेड दे जस्ट कंबाइंड, और आपके पास अब कोरैकोर ब्रेकियालिस इज अ वन हेड ओरिजिन मसल, राइट. एंड दैट्स द रीजन कि मस्कुलोकुटेनियस नर्व वो फर्स्ट पासिंग बिटवीन द अपर एंड द लोअर हेड. तो बाद में जब हेड दोनों क्रॉस हो गए और क्लोज हो गए, तो आपके पास इस तरह से होता है, दैट इज दिस नर्व इज पियर्सिंग द मसल. But originally it is not piercing the muscle, but according to evolution, this muscle had 3 heads. Medial head disappear हो गया. अच्छा, अब मीडियल हेड जब डिसअपेयर हो गया ना, तो देयर इट इज सेड दैट दिस इज ट्रूथर्स लिगामेंट, राइट. दिस इज योर medial supracondylar ridge of your humerus, and this is your medial epicondyle, right. So this truther ligament is basically a vestigial organ, right. Vestigial organ of your medial head of your coracobrachialis. अब अगर तो ये प्रेजेंट है, बिकॉज इज अ वेस्टिकल ऑर्गन, देयर इज नो सच इंपॉर्टेंट. अगर इसके इंपॉर्टेंट है, देन दिस ब्रेकियल आर्टरी in the lower part, then it lies posterior to this Struthers ligament as well, alongside your median nerve, right. So it's very important. अब bicipital epineuritis में आके आपके पास ये यहाँ पे उसने मीडियल, दिस इज योर मीडियल एपिकोंडाइल, उसको जैसे ही क्रॉस किया, दिस वाज योर ब्रेकियल आर्टरी, राइट. जैसे ही क्रॉस किया, अब ब्रेकियल आर्टरी, एंड दिस इज योर रेडियल आर्टरी, दैट इज सॉरी रेडियल नर्व दैट इज कमिंग ऑन, राइट. रेडियल नर्व. अब रेडियल नर्व वहाँ पे हमने डिस्कस किया, एक डीप ब्रांच दे देती है, दिस इज योर डीप ब्रांच, एंड दिस इज योर सुपरफिशियल ब्रांच. एंड अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, तो यहाँ पे आपके पास ट्राइंगुलर शेप 2 एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस आपके पास बनाएगा उसकी बेस, एंड दिस यहाँ पर होगा आपके पास, यहाँ पर ऑलमोस्ट, लेट मी जस्ट, यहाँ पे होगा आपके पास प्रोनेटेड टीरीज मसल ऑलमोस्ट, राइट. एंड दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके पास होगा ब्रेकियोरेडियालिस. दिस इज योर क्यूबिटल फोसा. लेट्स इमेजिन इट, राइट. नाउ इफ़ यू हैवेंट सीन द वीडियो ऑफ क्यूबिटल फोसा, तो आपको यहाँ समझ नहीं आएगी, तो जस्ट फर्स्ट गो और क्यूबिटल फोसा को रिवाइज करो. नाउ क्यूबिटल फोसा. अब क्यूबिटल फोसा में आपके पास, दिस इज योर ब्रेकियल आर्टरी, राइट. दिस इज योर ब्रेकियल आर्टरी. दिस ब्रेकियल आर्टरी व्हेन इट इज ऑपोजिट टू योर, लाइक यहाँ पे आपके पास रेडियस का नेक होगा, राइट. दिस रेडियल का हेड है, तो यहाँ पे उसका रेडियस का नेक होगा. जब रेडियस का नेक होता है, देन इट बाइफरकेट्स इनटू रेडियल आर्टरी. दिस इज योर रेडियल आर्टरी, एंड दिस इज योर अल्नार आर्टरी. और मीडियन नर्व के बारे में हमने डिस्कस किया था इन दिस बेसिपिटल इन दिस क्यूबिटल फोसा, कि मीडियल नर्व इज पासिंग एंड इट इज क्रॉसिंग योर अल्नर आर्टरी. The ulnar artery in its origin, it's posterior to this median nerve. This is your median nerve, right. Median nerve, and this is your ulnar nerve, and this is the deep branch of your radial nerve, right. तो यहाँ पर आके बाई ब्रेकियल आर्टरी इट एंड्स, राइट. इसका इख्तिताम हो जाता है. सो ये था उसका सारा का सारा द होल जर्नी ऑफ योर ब्रेकियल आर्टरी. नाउ वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट्स ब्रांचेस. इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ when it crosses around, like आपके पास, this is your scapula, then I imagine this the ये हमने कुछ ज़्यादा ही नीचे इसको बना दिया टीरीज मेजर को, राइट. तो टीरीज मेजर का आपके पास ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इट्स ऑन द पोस्टीरियर स्कैपुला, तो इसलिए हम तकरीबन यहाँ पर आके ऑलमोस्ट होगा, राइट. बिकॉज इट इज़ गोइंग टू इंसर्ट ऑन द फ्लोर ऑफ योर इंटरट्यूबरकुलर सेलिकस, अगर मैं गलत नहीं हूँ. नाउ तो यहाँ से ऑलमोस्ट हम इमेजिन कर लेते हैं, राइट. जस्ट रफ अंदाज़ा है, यहाँ से जो है आपके पास लोअर बॉर्डर होगा टीरीज मेजर का. नाउ व्हेन दिस
एक्सिलरी आर्टरी इज गोइंग टू क्रॉस इट, इट विल बिकम ब्रेकियल आर्टरी. अब इसकी सारी ब्रांचेस के बारे में हमने डिस्कस करना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, उससे पहले क्यूबिटल फोसा में हमने एक चीज़ छोड़ दी है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने स्ट्रक्चर तो डिस्कस किए नहीं. क्यूबिटल फोसा में आपके पास फ्रॉम द मीडियल टू द लैटरली, मीडियल यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ लैटरल लिख देते हैं, तो सारे मीडियल से लैटरल. सबसे मीडियल रिलेशन क्या होगा आपके पास क्यूबिटल फोसा में? नंबर 1 इज़ योर मीडियन नर्व, राइट, सबसे ज़्यादा मीडियल स्ट्रक्चर. देन योर ब्रेकियल आर्टरी, राइट. देन आपके पास दिस टेंडन, आपके पास बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन टी से लिख देता हूँ. देन इट्स योर रेडियल आर्टरी. नाउ मैनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आपके पास यहाँ पे अल्नर नर्व को क्यों नहीं हमने डिस्कस किया इन दिस क्यूबिटल फोसा. The thing is, in the cubital fossa, the ulnar nerve, जो कि हम यू कैन ulnar nerve वाले अगर हमने वो वीडियो आपने देखी है तो वहाँ पे आपको समझ आएगा. The ulnar nerve does not passes through the cubital fossa, right? It travels down the arm और ये pierce करती है किसको? medial intermuscular septum को. उसके बाद it passes behind the medial epicondyle of humerus. That's the reason यहाँ पे उसने dotted line दिखाई हुई है. These dotted lines, because it is not passing the cubital fossa but it is behind, posterior to this medial epicondyle, right? So this most medial structure is still the median nerve, right? So yeah, तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही brachial artery आ रही है, the first and the very important branch that is moving posterior to this humerus, that is your profunda brachii artery, right? Let me just profunda brachii artery. Now this profunda brachii artery, this arises just below the teres major muscle. इसलिए मैंने teres major muscle को मैं कह रहा था थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं, right? This is your teres major, तो almost let me just, right, तो इसके जैसे ही लोअर बॉर्डर के नीचे आपके पास ये आर्टरी अराइज हो रही होती है. दिस ब्रांच इज अराइजिंग प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी नाउ एंड इट एंटर्स योर लोअर ट्रायंगुलर स्पेस. लोअर ट्रायंगुलर स्पेस कौन सी थी? यू कैन इजीली अप्रिशिएट इन दिस पिक्चर. आपके पास इंटरमस्कुलर स्पेसेस में हमने डिस्कस किया था ना, यू हैव क्वाड ट्रायंगुलर स्पेस, अपर ट्रायंगुलर स्पेस एंड लोअर ट्रायंगुलर स्पेस. लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में आपके पास इट हैज़ बीन अकम्पेन्ड बाय योर रेडियल नर्व. तो यहाँ पे हम रेडियल नर्व भी अगर हम ड्रा कर लें, राइट, दिस इज योर रेडियल नर्व, तो ये दोनों पोस्टीरियर जाते हैं एंड यहाँ पर आपके पास एक ग्रूव होता है, हमने डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द ह्यूमरस. दिस इज योर रेडियल ग्रूव, राइट. इस रेडियल ग्रूव के अराउंड सराउंड करके ये आपके पास सराउंड करते हैं, राइट. एंड दिस देन एट द लोअर ऑफ योर अपर आर्म आपके पास रेडियल नर्व जो है दोबारा से सुपरफिशियल हो जाती है, राइट. लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट, या यू कैन सी द रेडियल नर्व इज कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड. सो तो आपके पास प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, this artery it arises just below the teres major muscle and it enters your lower triangular spaces alongside your radial nerve and it passes through your radial groove. Now this is very important because this branch of your brachial artery is very important. अच्छा, अब आपके पास ह्यूमरस की पोस्टीरियर सरफेस है ना, पोस्टीरियरली आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ से आपके पास मीडियल हेड ऑफ योर ट्राइसेप ब्रेकिया ओरिजिनेट हो रहा होगा, ऊपर से आपके पास जो लैटरल हेड ऑफ योर ट्राइसेप ब्रेकिया है वो आपके पास ओरिजिन हो रहा होगा. सो दिस ब्रेकियल जो प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी इट मूव्स अलॉन्ग साइड योर रेडियल नर्व, जो कि हमने डिस्कस किया था इन योर रेडियल नर्व के सारे सेशन में. This moves between the lateral head and your medial head of triceps, as you can see in this diagram, right? So आपके पास medial and your lateral head उन दोनों के दरमियान से जो है आपके पास ये गुजरते हैं in the radial groove, right? So this is very important because brachial artery lies between the lateral and medial heads of your triceps. Now, before entering the posterior कंपार्टमेंट, आपके पास यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये आर्टरी मूव कैसे कर रही है.
This basically most students think it's moving posterolaterally, but the thing is this artery is moving posteromedially. देखो ना, ये यहाँ से शुरू शुरू में लगता है कि लैटरल पोजीशन में, लेकिन बाद में यू कैन सी दिस इट्स टर्मिनल ब्रांचेस आर मूविंग मोर टू मीडियल साइड. तो दिस आर्टरी का आपके पास रिलेशन क्या होगा? पोस्टीरो मीडियली. और ब्रेकियल आर्टरी का अपना क्या है आपके पास? इट्स मूविंग डाउनवर्ड एंड लैटरली. यू कैन इजीली अप्रिशिएट इट्स मूविंग डाउनवर्ड बट लैटरली. सो लेट मी जस्ट क्लीन इट फॉर यू. अच्छा, नाउ जो ब्रेक इस प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी की जो ब्रांचेस है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहली ब्रांच आप यहाँ पर देखो, this is the ascending or deltoid branch of your profunda brachii, ascending or deltoid branch, and this is your posterior circumflex humeral artery that we discussed. It was arising from the third part of your axillary artery. Then this deltoid or your ascending branch of profunda brachii artery, it do anastomosis with this posterior circumflex humeral artery. Right, so this is the first branch that is arising, and let me just write it down: deltoid या ascending branch. Right now, before termination, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी ने टर्मिनेट करना है. ये टर्मिनेशन दो ब्रांचेस दे रही है. राइट, इट इज गिविंग टू मेन ब्रांचेस. So it is giving two branches. The one that is on the extreme lateral side, it is radial collateral. हमने डिस्कस किया था, अगर मेन ब्रांच ये हो, राइट, मेन ब्रांच ये हो, तो मेन ब्रांच की जो ब्रांच निकल रही है उससे अगर उसकी डायरेक्शन भी मेन ब्रांच की डायरेक्शन से मिलती हो तो हम उसको नाम देंगे कोलैटरल. अगर उसके ऑपोजिट हो तो उसको हम नाम देते हैं रिकरेंट. राइट, जो कि हमने डिस्कस किया था हमने इन आवर एल्बो एनास्टोमोसिस. सो दिस रेडियल कोलैटरल ब्रांच that is also called anterior descending artery. ठीक है, anterior descending artery. This artery, it is involved in the anastomosis in your elbow. ठीक है, जो anastomosis किससे कर रही है, वो हम elbow anastomosis में डिस्कस करेंगे. Here you just need to remember कि एक ब्रांच निकल रही है that is radial collateral, and its other name is your anterior descending artery of your profunda brachii. Profunda brachii, by the way मैंने इसका मतलब नहीं बताया. profunda का मतलब होता है deep, right, deep, and brachii means arm, so it's the deep artery of your arm that is branching out from the literally the lower border of your teres major. And the other branch is this, that is posterior. This is throughout its posterior. This is your middle collateral या ulnar collateral भी आप उसको कह सकते हो. middle collateral or your posterior descending branch, and it is also involved in anastomosis around your elbow. So पहली आपके पास deltoid branch, second is your radial collateral, and third is your medial collateral. And there is also some nutrient branches to humerus. nutrient foramen almost यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से आपके पास न्यूट्रन फोरामेन ह्यूमरस के लिए भी जा रही होगी. तो फोर्थ आपके पास ये ब्रांचेस. तो दीज ऑल आर दी ब्रांचेस ऑफ योर प्रोफंडा ब्रेकिया, द डीप आर्टरी ऑफ योर आर्म. कोई भी बोले डीप आर्टरी ऑफ योर आर्म क्या है, तो आपने नाम बोल देना है प्रोफंडा ब्रेकिया. दैट इज मूविंग पोस्टीरोमीडियली, नॉट पोस्टीरोलैटरली, राइट, एंड इट इज राइजिंग जस्ट इमीडिएट. जैसे ही आपके पास ब्रेकियल आर्टरी फॉर्म हो रही है, ब्रेकियल आर्टरी को अपना नाम मिल रहा है, जैसे उसी से नीचे आपके पास ये अराइज कर रही है. इट इज़ मूविंग पोस्टीरोमीडियली, राइट, एंड देन इट accompany the radial nerve and enters the lower triangular space where it passes between your medial and lateral head of your tricep brachii. उन दोनों के दरम्यान में जो स्पेस है वहाँ से मूव कर रही है इन योर रेडियल ग्रूव. वहाँ से आपके पास रेडियल ग्रूव के साथ मूव करके आपके पास न्यूट्रन आर्टरी को भी
ब्रांच दे रही है ह्यूमरस को, आपके पास डेल्टॉइड ब्रांच दे रही है जो कि एनास्टोमोस कर रही है विद योर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और आपके पास दो मेन एनास्टोमोसिस के लिए ब्रांचेस दे रही हैं, और ऑन योर एल्बो वी हैव योर रेडियल कोलैटरल एंड मिडिल कोलैटरल। ठीक है, तो ये आपके पास थी पहली मेन ब्रांच ऑफ योर ब्रेकियल आर्टरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद हियर यू कैन ईजिली अप्रिशिएट इन दिस, सबसे पहले अच्छा मेन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो रेडियल के, ये रेडियस है उसका हेड, तो उसके नेक के अराउंड आपके पास इट बाइसेफिकेट इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस। प्रोफंडा ब्रेकिया की टर्मिनल ब्रांचेस थी आपके पास रेडियल कोलैटरल एंड मीडियल कोलैटरल। इसकी टर्मिनल ब्रांचेस आपके पास क्या हैं, रेडियल आर्टरी एंड योर अल्नर आर्टरी, राइट। ये तो दो आपके पास ये ब्रांचेस हो गई, एक एंड दो, ये अगर दो ब्रांचेस हो गई। तीसरी ब्रांच न्यूट्रिएंट फोरामेन ऑफ ह्यूमरस, तीन ब्रांचेस हो गई। दो मेन ब्रांचेस हैं जो पहले ओरिजिन हो रही है, राइट, जस्ट बिलो योर प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, उस और आपके पास एक नीचे से आपके पास आ रही है। अच्छा, जो पहले ओरिजिन हो रही है जो दैट इज सुपीरियर, उसको आप नाम दे दोगे सुपीरियर, और ये अल्नर साइड में तो अल्ना, सुपीरियर अल्नर। अब इसकी जो ब्रांच है वो मेन आर्टरी की डायरेक्शन वाली साइड पे ही है, तो उसको दोगे कोलैटरल। सो दिस इज योर सुपीरियर अल्नर collateral, superior ulnar collateral branch, and it is also doing anastomosis. It is also involved in anastomosis around your elbow. Basically it is doing anastomosis posterior to this medial epicondyle, right, and this is your inferior to inferior. Now because it's on inferior और ये अगेन अल्नर साइड पे ही है तो इसको अल्नर ही लगा देते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर अल्नर एंड कोलैटरल, या फिर तो आप इसको क्या दोगे रिकरेंट या कोलैटरल, सेम डायरेक्शन में ब्लड ले जा रही है, दैट इट्स अगेन कोलैटरल। तो इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल, बाय द वे इट्स ऑल्सो कॉल्ड सुप्रा ट्रॉक्लियर। ये ट्रॉक्लियर प्रोसेस है ना आपके पास ह्यूमरस का, राइट। तो आपके पास दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रा ट्रॉक्लियर ब्रांच ऑफ योर ब्रेकियल आर्टरी, दोनों नाम याद रखने हैं। एंड इट इज ऑल्सो डूइंग एनास्टोमोसिस एंटीरियर टू दिस मीडियल एपिकोंडाइल, वो आपके पास दूसरी कर रही थी सुपीरियर अल्नर कोलैटरल, पोस्टीरियर टू दिस मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज गोइंग एंटीरियर एंड दिस इज डूइंग एनास्टोमोसिस अराउंड योर एल्बो, and but this anastomosis is anterior to this medial epicondyle, right. So that was all for this brachial artery का सारा concept. Now this brachial artery is very important क्योंकि आपके पास पूरा upper arm, बल्कि पूरा upper arm क्या पूरा आपके पास upper limb, because radial और ulnar भी इसी की terminal branches हैं, right, इसी से originate हो रहे हैं, right. So any problem with this can cause problems. अच्छा, clinically is very important क्योंकि अब हमने डिस्कस किया, let me just move on to your cubital fossa. Cubital fossa में most medial sphincter is your median nerve, then it's medial to your bicep brachia and you have your brachial artery, and this brachial artery you can easily palpate it on your elbow. ठीक है, आपने जस्ट सबसे पहले बाइसेप के बाइका के टेंडन को आपने लोकेट करना है। किस तरह से करोगे, अपने आर्म को सेमी फ्लेक्स करो और एल्बो में आपने एक टेंडन महसूस आप कर रहे होगे फ्रंट साइड पे टेंडन, उस टेंडन के आपके पास मीडियल साइड पे आपके पास, मतलब कि अल्नर साइड पे आपके पास you will find your brachial artery, and this brachial artery you will feel the pulsations, the brachial pulsations, right, and these are felt and osculated in front of your elbow, just medial to the tendon of your bicep brachia for recording blood pressure, of course, right. So that's the clinical importance of this artery.